Assalamu alaikum students. Today our topic is types of matrices. Matrices की 12 टाइप्स होती हैं एंड मैं आपको वन बाय वन जो है वो समझाऊंगी. फर्स्ट टाइप ऑफ matrices is row matrix. What is a row matrix? A matrix is called a row matrix if it has only one row. अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें वन रो होगी तो उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैट्रिक्स A 1 2 3. So this matrix has only one row, so it is called a row matrix. नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप कॉलम मैट्रिक्स. What is a column matrix? A matrix is called a column matrix if it has only one column. Only one column. For example, हम कंसिडर करते हैं एक मैट्रिक्स B is equal to 1 2 3. So this matrix has only one column, so it is called a column matrix. मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे. वन रो एंड वन कॉलम. नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. What is a rectangular matrix? A matrix is called a rectangular matrix if the number of rows is not equal to number of columns. For example, we consider C is equal to 1 2 3 4 5 6. This matrix has 1 2 3 rows and 1 2 columns, R1 R2 and R3. 1 2 3 rows and 2 columns. So the number of rows and columns are not equal. This matrix is called a rectangular matrix. Number of rows is not equal to number of columns. फोर्थ टाइप आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. What is a square matrix? A matrix is called a square matrix if it has the same number of rows and columns. जैसे कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर था उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं थे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल आई कंसिडर मैट्रिक्स D इज इक्वल टू 1 5 7 9. This matrix has rows R1 R2 C1 C2. So it has 2 rows and 2 columns. This matrix is called square matrix. मेंशन कर देती हूँ. number of rows is equal to number of columns. नेक्स्ट टाइप आती है, इसमें आप स्क्वायर मैट्रिक्स में आप और भी ले सकते हैं एग्जांपल, जिसमें आप 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ले लें, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स ले लें. नेक्स्ट टाइप है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. नल और ज़ीरो मैट्रिक्स.
इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं एंड ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब जैसा कि नेम से जो है वो जाहिर है कि इसमें क्या होगा, ज़ीरो होंगी, सारी एंट्रीज इसमें हमारे पास ज़ीरो होंगी। फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैट्रिक ई, इसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नल मैट्रिक्स को आप ओ से रिप्रेजेंट किया करें। ओ इज इक्वल टू 0 0 0 0. This matrix has entries 0. All the entries of this matrix is 0. So this matrix is called a null matrix. इसके अलावा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास रो 1 2 C1 एंड C2 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ जिसमें आपके पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। सो 1 2 3 and C1 C2 and C3. So this matrix has 3 rows and 3 columns. These matrices are called zero matrix or null matrix. Next is transpose of a matrix. What is the transpose of a matrix? A matrix which is obtained by the changing of rows into columns and columns into rows is called the transpose of a matrix. For example, जब आप कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें जो रोज़ होती हैं उनको आप कॉलम्स में चेंज कर लेते हो या फिर आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लेते हैं, तो हमें ऑब्टेन होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए ट्रांसपोज से। डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज into columns or columns into rows. It is called the transpose of a matrix and it is represented by A transpose. It is represented by A transpose. For example, we have a matrix A. A is equal to 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2. Now we will change the rows into columns. A transpose is equal to 1 2 3, first row, second row and third row, R1 R2 and R3. First row, I write this first row in column, first column, the second row in second column 2 1 0 and the third row -1 4 and -2 in third column. So I change the rows into columns. This matrix is called the transpose of A. Next is negative of a matrix. Negative of a matrix. For example, we consider a matrix A
is equal to 1, -2, 3 and 4. The negative of this matrix is represented by the symbol -a. एंड आपने क्या करना है, आप जब नेगेटिव लेंगे तो आप दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. -a इज इक्वल टू, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, -1, या हम कह सकते हैं कि इनको इन एंट्रीज को आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है. 2, -3 एंड -4. So it is called the negative of matrix A and it is represented by the symbol -a. Next is symmetric matrix. What is a symmetric matrix? A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose. एंड आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स ए एंड इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स. It is called symmetric matrix if it is equal to its transpose. So it is the definition. A square matrix is symmetric matrix if it is equal to its transpose. For example, we have an example. A is equal to 1, 2, 3, 2, -1, 4, 3, 4, 0. अब हम इनका ट्रांसपोज लेंगे इस मैट्रिक्स का एंड देखेंगे अगर वो इक्वल होंगे तो वो कहलाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है. A transpose is equal to, this matrix has 3 rows or 2 and or 3. Now I will change these rows into columns. 1, 2, 3, 2, -1, 4 and third row 3, 4, 0. अब आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, ट्रांसपोज को ए के साथ कंपेयर करें, क्या ये इक्वल है. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, -1, 4, 2, -1, 4, 3, 4, 0, 3, 4, 0. These matrices are equal, so these are symmetric. Next is skew-symmetric matrix. What is a skew-symmetric matrix? A matrix is said to be skew-symmetric if its transpose is equal to negative of itself. अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगी, आप उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आप उसका नेगेटिव फाइंड करेंगे और उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए. अगर वो इक्वल होंगे तो हम उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Let we consider an example of skew symmetric. For example, A is equal to 0, 2, 3, -2, 0, 1, -3,
-1 and 0. दिस इज़ अ मैट्रिक्स. अब हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज एंड नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड दोनों इक्वल आने चाहिए. ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज आपने कैसे फाइंड करना है, रोज को कॉलम में चेंज करना है. सो आई विल चेंज दीज रोज 1, 2 and 3 in columns. First row is 0, 2, 3. Second row is -2, 0, 1, and third row is -3, -1 and 0. So this is the transpose of matrix A. Now I will find the negative of matrix A. Negative of matrix A will be -A is equal to, आपने नेगेटिव माइनस को आपने एंट्रीज से मल्टीप्लाई करना है. सो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. 0, -2, -3, 2, 0, -1, 3, 1 and 0. सो अब आपने कंपेयर करना है. ये आपके पास डेफिनेशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए. ए ट्रांसपोज एंड नेगेटिव ऑफ ए इक्वल आना चाहिए. ए ट्रांसपोज इज 0, -2, -3, 0, -2, -3, 2, 0, -1, 2, 0, -1, 3, 1, 0, 3, 1, 0. सो आपके पास ए ट्रांसपोज एंड नेगेटिव ऑफ ए इक्वल आ गए. सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a. दिस इज कॉल्ड द skew symmetric matrix. Next is diagonal matrix. What is a diagonal matrix? A matrix, a square matrix, a square matrix is called diagonal matrix if at least one entry of this matrix of the diagonal is not equal to 0. If at least one of the entry of diagonal is not equal to 0. कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास हो और उसके डायगोनल में कोई एक एंट्री जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगी. फॉर एग्जांपल वी हैव मैट्रिक्स A 1 0 0 0 2 0 0 0 and 3. सो इसमें आपके पास डायगोनल में सारी वन डायगोनल में सब एंट्रीज है. देन हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं. आई विल टेक b इज इक्वल टू 0 0 0 0 1 0 0 0 3. सो इसमें डायगोनल्स की एंट्रीज, दो एंट्रीज जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है. सो एटलीस्ट 1 होनी चाहिए. कम से कम आपके पास एक एंट्री जो है वो अगर नॉट इक्वल टू 0 होगी तो उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स. अगर इसी को ही आप लें और यहाँ भी 0 कर दें तो भी ये होगी डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. Next is scalar matrix.
A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. If all the diagonal entries are same and non-zero. अब इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास जो डायगोनल की एंट्रीज है वो सेम हो और नॉन ज़ीरो हो. फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू मैं लेती हूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2. So in this matrix the diagonal entries are 2. All the diagonal entries are 2. So these are not equal to 0 and also same. So it is called the diagonal matrix. Sorry, scalar matrix. नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. C इज इक्वल टू 5 0 0 5. So this matrix is also called scalar matrix because the diagonal entries are 5 and both the diagonal entries are 5. So these are same and non-zero. So it is called a scalar matrix. Next is identity matrix. A diagonal matrix is called identity matrix if all the diagonal entries is denoted by 1. अब इसमें क्या है कि डायगोनल आपके पास 1 होना चाहिए. डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज है 1 होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे स्केलर में 2 हैं एंड सेम है. इसमें डिफरेंट भी हो सकती है लेकिन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसमें आपके पास जो डायगोनल की एंट्रीज है वो 1 होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हम इसी को ही कंसिडर कर लेते हैं. B इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So all the diagonal entries are 1. This is called the identity matrix. And next हम C की ही एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं. 1 0 0 1. So it is also called the identity matrix. So इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा मैं ग्रुप का लिंक भी दूंगी. आप उसमें आप जो है वो क्वेश्चन अपने शेयर कर सकते हैं. थैंक यू.